बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। कि उसके बारे में, अगर गाड़ी में खुदा न खास्ता रोड पर आप जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो जाता है तो गाड़ी में एक ड्राइवर है और उसके साथ दूसरे अफराद बैठे हुए हैं, पीछे आगे फ्रंट पे एक दो तीन अफराद बैठे हैं, तो उस सूरत में जो दूसरे अफराद हैं, क्या उनको भी इंश्योरेंस कुछ पे करेगी? आपका कसूर नहीं है, आपको दूसरी तरफ से किसी ने आके हिट किया है, तो जो दूसरे साथ बैठे हैं उनका क्या हक है, क्या राइट्स हैं उनके, तो ये जानते हैं एडवोकेट साहब से। Allora, la prossima domanda è: qual è la procedura per il risarcimento delle lesioni fisiche subito dai passeggeri, inoltre dell'autista, anche incluso autista? Grazie. Allora, la parte che riguarda le lesioni è la parte più importante. Il mio primo consiglio è quello, per chi subisce una lesione da incidente stradale o sul lavoro, è di recarsi immediatamente in un pronto soccorso nell'ospedale più vicino. Okay. Molte persone fanno l'errore magari di andare al pronto soccorso con un giorno o 2 giorni di ritardo, oppure di non farsi visitare in un ospedale ma dal medico di famiglia, e questo purtroppo spesso compromette la quantificazione del risarcimento. Il nostro studio legale collabora con alcuni medici che anch'essi sono specializzati nel campo delle assicurazioni, che seguono la malattia dei clienti e consigliano a quali esami sottoporsi durante la malattia. Quando la malattia è finita e le lesioni, diciamo, si sono stabilizzate, i nostri medici eseguono una visita completa, finale del cliente, e successivamente predispongono una relazione che si chiama relazione medico-legale, in cui elencano le patologie subite dalla persona danneggiata, la durata della malattia e alla fine quantificano il punteggio relativo all'invalidità permanente. Invalidità permanente che va dall'1% al 100%, e ovviamente quando un cliente viene visitato da un medico specialista riesce ad avere migliori garanzie. Infatti il medico nostro dello studio predispone una relazione medico-legale con la quale il cliente andrà poi ad essere visitato a una seconda visita dal medico dell'assicurazione. Andare a visita dal medico dell'assicurazione senza una relazione fatta da un medico di parte significa non avere praticamente nessun strumento di difesa, perché spesso si rischia di avere dei punteggi che sono minimi, e spesso capita anche, soprattutto nei sinistri magari di minore entità, di avere punteggi di controparte dello 0%. Inoltre sottolineo che la fattura relativa alle prestazioni del nostro medico legale viene poi presentata all'assicurazione e viene anche pagata dall'assicurazione, quindi per il cliente che viene seguito dal nostro medico non costituisce nessun costo supplementare. Inoltre avere una relazione medica obbliga appunto i medici delle assicurazioni a valutare congruamente e correttamente le lesioni che sono subite da un passeggero o dal conducente in un incidente stradale. Ok, era lunga risposta. Allora जी, एडवोकेट साहब का कहना बड़ी तफसीर से उन्होंने जवाब दिया है इसका, कि जब एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहला काम जो आपने करना है प्रोंतो स्कोर्सो जाना है फौरन। जो लोग एक दिन लेट करके या 2 दिन लेट करके जाते हैं, वो उनका केस जो है वो नॉर्मल होता है, उतना पावरफुल नहीं रहता, पहली बात है। अगर ड्राइवर और उसके साथ बैठे हुए दूसरे लोग जो हैं वो भी इस हादसे का शिकार होते हैं, तो सबको प्रोंतो स्कोर्सो जाना होगा और वहां पे फर्स्ट रिपोर्ट जो है वो लिखवानी होगी, जहां पे जो फर्स्ट रिपोर्ट यानी फर्स्ट मेडिसिन जिसे कहते हैं फर्स्ट एड, वो लेनी होगी, क्योंकि आपका रिकॉर्ड वहां पे चला जाए कि जिस दिन आपका एक्सीडेंट हुआ है उसी दिन आप गए हैं।
अच्छा, उसके बाद एडवोकेट साहब कहते हैं कि हमारे स्टूडियो के साथ हमारे जो रिलेटेड डॉक्टर हैं उनके स्टूडियो के साथ वो स्पेशलिस्ट हैं इन्हीं शोबों के। तो अगर आप किसी वकील के साथ राब्ता करते हैं जो माहिर होता है, या अलेसांद्रो साहब से राब्ता करते हैं, तो इनके जो स्पेशलिस्ट रिलेटेड डॉक्टर होते हैं वो उसके बाद आपका चेकअप करते रहेंगे। जब आप पहली फर्स्ट एड ले लेते हैं प्रोंतो सोकोर्सो से, तो उसके बाद जो है वो केस जो है वो फॉलो करेंगे। और इनके जो डॉक्टर हैं, क्योंकि अलेसांद्रो साहब का कहना है कि जो इंश्योरेंस के वकील जो डॉक्टर होते हैं वो भी इसमें कुछ ना कुछ घपला लाजमी कर जाते हैं, क्योंकि वो उनकी इंश्योरेंस से बातचीत तय होती है। तो बेहतर होता है कि हमेशा अपने फैमिली डॉक्टर से, या उससे भी बेहतर है कि आप जो स्टूडियो से रिलेटेड वकील से रिलेटेड जो डॉक्टर होते हैं, प्राइवेट डॉक्टर इनके होते हैं, वो उनसे राब्ता करें। और वो डॉक्टर जो होता है वो जितनी देर आप बीमार रहेंगे या जितनी देर आप घर रहेंगे, इन्फॉर्तूनियों पे रहेंगे, मलातिया पे रहेंगे, वो डॉक्टर आपको लिख के देता रहेगा मैक्सिमम जब तक आप सही नहीं हो जाते। वो मलातिया भी लिख के देता रहेगा आपको, इन्फॉर्तूनियों भी लिख के देता रहेगा, और वो आपका स्पेशल चेकअप करता रहेगा। अच्छा, अलेसांद्रो साहब का कहना है कि इनके पास भी स्पेशल डॉक्टर हैं रिलेटेड जो इस शोबा को डील करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो कि अलेसांद्रो का ये भी कहना है एडवोकेट का कि अगर आप इस हादसे से शिकार होते हैं तो उसके बाद जो डॉक्टर हैं जो इस स्पेशलिस्ट इनके रिलेटेड हैं वो जो है आपका केस फॉलो करते हैं। और जब तक आपका केस हल नहीं हो जाता, जब तक आप सही मुकम्मल सेहतमंद नहीं हो जाते, उस वक्त तक वो आपका केस लेकर चलते रहते हैं। तो इस सूरत में एडवोकेट साहब का कहना है कि आपको फौरन सबसे पहले प्रोंतो सोकोर्सो जाना चाहिए, और उसके बाद एडवोकेट के जरिए जितने भी डॉक्टर उनके रिलेटेड होते हैं उनसे अपना चेकअप जो है वो जारी रखना चाहिए, ताकि इंश्योरेंस वाले जो डॉक्टर हैं वो आपसे किसी किस्म का जो है वो कोई आपसे फ्रॉड ना कर सकें। तो उसके बाद एडवोकेट साहब का ये भी कहना है कि अगर आप इनके ऑफिस के जरिए या किसी भी वकील के ऑफिस के जरिए आप राब्ता करते हैं, तो डॉक्टर की जितनी फीस होती है और जितना उसका जो फतूरा बनता है वो पहले आपने कोई पैसा नहीं देना होता। जितनी डॉक्टर की फीस होगी वो भी इंश्योरेंस ही पे करेगी, क्योंकि वो इसके जिम्मेदार होते हैं। जितनी आपके चेकअप होते हैं, जितनी आपकी मेडिसिन होती है, हर चीज वो इंश्योरेंस पे करती है। तो वो भी जो है डॉक्टर लेकर देते हैं, और उस फतूरे के जो पैसे हैं वो भी इंश्योरेंस पे करती है।